जी, Assalamu alaikum ji. I hope you, your families and everything else is well inshallah. Today there will be a good news for all of you. Before we start, I just want to share something. कहते हैं the most precious thing that one person can share with other is time, because everything is retrievable, everything is recoverable. फाइनेंशियल लॉस भी लॉस नहीं होता क्योंकि पैसा तो इंसान कमा ही लेता है, पैसा तो आने जाने वाली चीज है. लेकिन when you give time to someone, आप जब अपना वक्त देते हो किसी को, तो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा उसको दे रहे हो, तो यू आर गिविंग पार्ट ऑफ योर लाइफ टू दैट पर्सन. So in that sense, the most precious thing that one person can give to any other person is time. So in this regard, I'm extremely grateful to all of you जिन्होंने हमें अपना टाइम दिया and gave us a chance to present ourselves. I'm extremely grateful to entire KIPS admin जिन्होंने हमें मौका दिया मिलने का, and I have a high privilege and the distinct honor, and I'm extremely grateful to welcome Amna Beg, who has given her time to us. Or she qualified CSS 2015 and made her way into Police Service of Pakistan. Congratulations and thank you so much, Amna, for being here. Thank you so much, Awais, for having me. Acha, before we start, let us share something. जो मतलब agenda for today's talk will be. First and foremost thing is that you should be knowing about the basics of, मतलब ये assume करते हुए कि आप में से कोई एक भी ऐसा है जिस जो मतलब very first time इस तरह का webinar attend कर रहा है, तो उसको पता हो कि what this exam is all about, CSS कितने subjects होते हैं, उसमें optionals कितने हैं और compulsories का क्या combo है and so on. Number two, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है you should be clear in your mind कि why you can consider putting all your professions aside. जिस तरह आमना भी आपके सामने शेयर करेंगे कि she was doing a very good job and she had many other career options. लेकिन why did she consider putting all those options aside and consider joining civil services of Pakistan? Number three, we're going to also be sharing some of the myths, some of the discouraging factors in the prevailing in the society, some negativities in your mind जो मतलब आपको hamper करती हैं from coming to CSS in the first place. वो सब समझते हैं कि पता नहीं किस तरह के लोग होती हैं, किस तरह की मखलूक होती है जो CSS करती है, हम लोग पता नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते. No, my dear, इस तरह का कुछ नहीं है. Everyone can do, you can do. It's all in your mind. So what are those myths and how can you can do? I'm not going to be helping you out in clearing those myths as well. अच्छा, what are some of the habits which are common to all the CSS qualifiers? जिस तरह मतलब what it takes to basically, and I'm not going to be sharing by being in your shoes. She really understands कि आपके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है, खास तौर पे इस प्रिवेलिंग पेंडेमिक जो हमारा चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली वी आर होपफुल टू गॉड इंशाल्लाह कि ये जल्दी से सबसाइड हो. तो इस वक्त कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, शी वेरी वेल अंडरस्टैंड्स बाय बीइंग इन योर शूज बिकॉज शी वाज आल्सो अ स्टूडेंट फ्यू इयर्स बैक, एंड उनको पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है. शी गोना बी गाइडिंग यू. What was her strategy? What was her unique methodology? उन्होंने कहाँ से किया था? How did she manage to cover the difficult subjects like English Pressy, English essay and so on? उसके अलावा एक बड़ा कॉमन कंसर्न होता है how much time does it require to qualify the CSS exam? कितनी देर लगती है? इनफैक्ट इसका बेस्ट आंसर ये है कि you first of all you should ask yourself what abilities you need to instill within your minds in order to make sure that you qualify the CSS exam. So what are the abilities जो सब qualifiers अपने अंदर possess करते हैं and make your way into civil services? एंड उसके अलावा एक कैंडिडेट्स का कॉमन कंसर्न होता है रिगार्डिंग ऑप्शनल्स. कहते हैं कि एंड दैट्स अ रियली जेन्युइन कंसर्न. कहते हैं अगर आपने ऑप्शंस अपने सही रख लिए हैं तो हाफ ऑफ द सीएसएस इज डन. सो आई रिक्वेस्ट आमना कि शी गोना बी शेयरिंग हर ऑप्शंस विद यू और आपको हेल्प करेंगे हाउ यू कैन सेलेक्ट योर ऑप्शंस एज वेल. देयर विल बी जस्ट अ जनरल ब्रीफ 5 मिनट्स टॉक और उसके बाद इंडिविजुअली इफ एनीवन वांट्स टू नो फॉर हिज और हर सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन योर ओन बैकग्राउंड वी गोना बी हेल्पिंग यू आउट इंडिविजुअली आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. अच्छा, What are some of the reasons for failure? ये पता होना बहुत जरूरी है बिकॉज जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनर आपको फेल क्यों करते हैं, आप पास कैसे होगे, सीधी सी बात है. एंड इन द लाइट ऑफ दोज रीजंस फॉर फेलियर, what distinguished features we have offered you people. And lastly, there will be a general talk on online platforms as well. As I mentioned, there is a good news for you people. You know one thing, unfortunately we are passing through a very difficult time. ठीक है. And governments have imposed various forms of lockdown. और जब भी इस तरह की कोई calamity होती है, some outbreak of such a disease, this pandemic, अल्लाह ना करे any future pandemics, it is education that becomes the very first victim of all this. और खास तौर पे फीमेल एजुकेशन. यू नो वन थिंग, हमारी सोसाइटी में ये एक ट्रेंड है कि मेल के ऊपर पैसे फिर भी लगा लिए जाते हैं. तो आपने इसमें घबराना नहीं है. Living up to our promise of providing you the best possible experience and most importantly uninterrupted learning experience, ताकि आप यूथ है उसके टाइम जाया ना हो. आपको डिस्पाइट दिस पेंडेमिक यू शुड बी, आई एक्सेप्ट कि फेस टू फेस लर्निंग का तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कैलेमिटी की वजह से हमारा ये चीज डिसरप्ट हुई है. लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं.
KIPS will be providing you that thing. This is LMS, and you can scroll down through our Facebook videos. You can see what learning management system is all about. LMS is all about. ठीक है? And in the end, inshallah, after last 10 to 15 minutes, we're going to be taking some of the questions. कुछ हम address कर पाएंगे और कुछ अगर हम ना कर पाए, आपको आंसर उसका मिल जाएगा. ठीक है? So you don't have to worry about anything. Okay. Amna, welcome again. And candidates must know about the incredibly talented person who is there for their guidance. Your background, your educational background, मतलब और उसके बाद what was the motivation for you? Why did you consider putting all your the profession aside and joining civil services of Pakistan? And what was the preparation strategy? What distinguished strategy you adopted that in the very first attempt you managed to join police service of Pakistan? Congratulations, and please talk for on these things for few minutes. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच अवैस. बिल्कुल आपने बहुत सारी अच्छी बातें की और बहुत सारी पर्टिनेंट बातें की. मैं जी आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ किप्स. मैंने किप्स से ही पढ़ा था, इस्लामाबाद कैंपस से स्टार्ट मैंने वहाँ से किया था. एंड आई रिमेंबर कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो आजकल तो जैसे आपने बताया सोशल मीडिया की वजह से बड़ी सारी अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, CSS होती क्या चीज़ है. 4-5 साल पहले जब मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था तब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये क्या होता है. बट आई वॉज लकी इनफ टू बी अ स्टूडेंट ऑफ किप्स, और किप्स जाके मुझे गाइडेंस मिली. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल क्या होते हैं, कंपल्सरी क्या होते हैं, बैकग्राउंड कैसा चाहिए, कैसे बैकग्राउंड से एग्जाम हो सकता है, कैसे से नहीं हो सकता, और बहुत सारे सवाल मेरे जहन में थे. जैसे एक आपने बड़ी अच्छी बात की जो कि मुझे एज अ स्टूडेंट हमेशा लगता था कि जब किप्स के टीचर्स हमारे सामने आके खड़े होते थे और हमें पढ़ाते थे तो वो सारे सिविल सर्वेंट्स होते थे, और हमें ऐसा लगता था कि इनके कोई ऐसी बात है इनमें जो शायद हमें ना हो और नहीं होता, और पता नहीं कोई ऐसे सींग है इनके जो शायद हमें नहीं है जिसकी वजह से ये पास हो चुके हैं और हम पास नहीं हो चुके. तो दैट इज स्टूडेंट एंजाइटी, और एंजाइटी हर बंदे को होती है. मुझे भी वही सारे मैं कहूंगी फियर्स थे जो कि आई एम श्योर के बाकी सारे स्टूडेंट्स को होंगे. तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि वो जो एक गैप होता है स्टूडेंट टीचर का, वो मुझे किप्स आके अंदाजा हुआ कि नहीं होना चाहिए. और वहां पे मुझे बताया गया कि किस तरह से वो हमारे तरह के ही लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास कर देते हैं. बस उसमें थोड़ी बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे अपनी जर्नी में नजर आई थी वो ये थी कि एक तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है. देयर इज नो शॉर्टकट. आप ये नहीं कर सकते कि मैंने 1 महीना तैयारी की और मेरा पास हो जाएगा. और इट्स 12 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को आपने डिटेल में देखना है. तो एक तो हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हार्ड वर्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गाइडेंस. जब तक आपके पास ठीक गाइडेंस नहीं होगी, आप हार्ड वर्क करते भी रहेंगे तो आपकी गाइडेंस अगर गलत है तो आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास नहीं कर सकते. And the third thing which I feel is extremely important is timely preparation. आप एक अच्छे टाइम पे तैयारी स्टार्ट कर दें. ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं. जितना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना एज होगा आपको बाकी लोगों के ऊपर. तो हार्ड वर्क, गाइडेंस एंड टाइम, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम 7 से 8 महीने जो है वो तैयारी करें. एज अवैस मेंशन देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर होते हैं. मैं सबको एक दफा क्लियरली बता दूं, 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं. तो उन सबको पढ़ के डिटेल में टाइम देना बहुत जरूरी है. तो इट्स important that you start as early as possible and then again have the right guidance. ये नहीं होता कि आपकी कोई 12 सब्जेक्ट्स हैं तो 12 किताबें और वो किताबें आपने पढ़नी शुरू कर दी तो आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास हो जाओगे. ऐसा नहीं होता. हर सब्जेक्ट की डिफरेंट तैयारी होती है. इंग्लिश कंपोजिशन के लिए आपको कुछ और करना पड़ता है, इंग्लिश एस्से के लिए आपको कुछ और करना पड़ता है, यूएस हिस्ट्री किसी और तरह से पढ़नी पड़ती है. उस सब के लिए जब तक आपको एक टीचर बता नहीं रहा होगा कि आपने ये सब्जेक्ट कहाँ से कैसे पढ़ना है, तब तक आप पास नहीं कर सकते. एक छोटी सी टिप मैं यहाँ पे आप सबको दूंगी कि आपने अवैस ने बताया कि उन स्टूडेंट्स में जो कि पास हो जाते हैं और उन स्टूडेंट्स में जो कि पास नहीं होते क्या फर्क होता है. तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क नजर आता है वो ये नजर आता है कि जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं वो हमेशा ड्यूरिंग देयर स्टडीज अपनी असाइनमेंट्स करके चेक कराते हैं टीचर से और फीडबैक लेते हैं. जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि हार्ड वर्क आप करते रहो, लेकिन जब तक गाइडेंस नहीं है आप नहीं क्लियर कर सकते. तो जो कामयाब स्टूडेंट है वो हमेशा अपने सारे नोट्स, अपनी सारी अटेम्प्ट्स जो है वो अपने किसी टीचर को दिखाएगा और उससे फीडबैक लेगा कि क्या ये मैंने ठीक किया है या मैंने गलत किया है. तो फीडबैक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अ पासिंग स्टूडेंट एंड अ नॉन पासिंग स्टूडेंट. Thank you so much, Amna, for sharing this remarkable information. आपकी फीडबैक वाली बात से मुझे एक बात याद आई है. देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन के मतलब कितना टाइम लगता है प्रिपेयर होने में, करने में. एंड सिंस आई एम आल्सो एन एकेडमिक काउंसलर फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 years,
आई गेस के देयर इज नो पेट आंसर टू दिस क्वेश्चन. कुछ लोगों ने 4 महीने में भी किया हुआ है, कुछ लोग 2-2 3-3 साल. आई थिंक द बेस्ट क्वेश्चन द कैंडिडेट शुड आस्क देमसेल्फ, what abilities they need to instill within themselves in order to qualify that exam. ठीक है. And once they acquire those abilities, उसके बाद ये है कि मतलब in depth, I just mention a few, like in depth understanding of all the topics required. तो जब वो अपने माइंड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे कैन कैश फ्रॉम एनी अदर थिंग, जो मतलब उनको डिफरेंट सोर्सेज से नहीं मिलेगी, जो उनको डिफरेंट बुक से नहीं मिलेगी, जो उनको डिफरेंट यूट्यूब चैनल से भी नहीं मिलेगी, इज देयर ability to get their attempts evaluated from the teacher. जो आपने फीडबैक की बात कही है, जो आपका रिटर्न अटेम्प्ट होता है, वो आपने अटेम्प्ट किया और टीचर को लिखकर चेक करवाया, और आपके रिटर्न अटेम्प्ट में किसी ने फीडबैक दिया कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इन योर, like I give you an example. They need first of all in-depth understanding of all the topics required. They need to build within themselves the ability to comment on the event, something which we call analysis. They need to build their opinions on the issue. They should be clear in their minds, they should be clear in their opinion, they should frame their opinion, and most importantly they should be in a position to defend their opinion as well. But examiner के पास आपका mind नहीं जा रहा, examiner के पास आपकी writing जा रही है. तो most importantly ये है कि you have to attempt and you have to get it checked from the, and Amna, I should tell you that you also be knowing, because you also are one of the faculty members, respectable faculty members of this institute. In every campus of KIPS, there are more than 3 to 4 academic counselors all the time present to check their written attempts. English help desk की facility है, general help desk की facility है. They write down, they get it checked, and this is the only thing required: writing down, getting them checked, writing down, and getting them checked. I just want you to slightly comment more on this thing. जी मैं आपको यही कह रही हूँ कि बहुत सारे हम में से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद, देखिए मैं हमेशा ये समझती हूँ कि अल्लाह ने हर बंदे को कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस दी होती हैं. शायद कोई चीज आपकी स्ट्रेंथ हो और कोई चीज आपकी वीकनेस हो, बट समबडी नीड्स टू टेल यू कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपकी वीकनेस है, और वो आपको तभी पता चल सकता है जब आपको फीडबैक मिलेगा अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर. अपनी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मैं बिफोर आई जॉइन किप्स मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और मैं रिटन जो है मेरा बहुत अच्छा, ऐसे में तो मुझे मसला ही नहीं होगा. ट्रिब्यून के लिए मैं ब्लॉग्स लिखती थी तब, तो मुझे लगता था कि एसे और कॉम्पोजिशन वुड बी नो इशू फॉर मी. लेकिन जब मैंने पहली दफा एक मॉक एग्जाम में से पहले थोड़ा अपना एसे जो है वो लिख के सर को चेक कराया, जो किप्स की हमारी फैकल्टी थी तब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर ऐसे लिखेंगी तो यू वुड नॉट बी एबल टू क्लियर. तो मुझे तब अंदाजा हुआ कि फीडबैक कितना जरूरी है, कि एक इंसान समझ रहा होता है कि उसकी अंग्रेजी ग्रामेटिकली ठीक है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, उसका एक्सप्रेशन अच्छा है, लेकिन फिर क्या वजह है कि मेरा ऐसे जो है मेरा टीचर मुझे कह रहा है कि नहीं क्लियर होगा. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू क्लियर इट, बिकॉज वो टीचर ने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी उस ऐसे के ऊपर, और उसने कहा कि इसमें मसला आपकी ना अंग्रेजी का है ना आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का है, मसला आपके ओवरऑल अपने थॉट्स को कलेक्ट करने में है. तो ये भी चीजें होती हैं जो बेसिक चीजें होती हैं शायद जिनका हमें नहीं पता होता, और वो टीचर्स को पता होता है जिन्होंने ये एग्जाम ऑलरेडी दिया होता है, वो हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं. तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे फिर वो समझाया कि उसको मैंने किस तरह से अपने थॉट्स को कलेक्ट करना है, किस तरह से मैंने उसको स्ट्रक्चर करना है पूरे ऐसे को, और किस तरह से मैंने अपना मैसेज कन्वे करना है टू द एग्जामिनर, एज यू सेड कि वो मेरी शक्ल या मेरा माइंड तो नहीं देख रहा, वो मेरा एग्जाम देख रहा है. तो उसमें मैं बार बार यही कहूंगी, आपने आप में कभी ये नहीं समझना कि मुझे किसी चीज बहुत अच्छी आती है और मुझे इस पर बिल्कुल गाइडेंस की जरूरत नहीं है. ट्रस्ट मी, आपको एक चीज बहुत अच्छी आती होगी लेकिन फिर भी उसमें आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, और ये तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तो इस पे आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ. अच्छा, थैंक यू सो मच आमना फॉर दिस आंसर. अच्छा, व्हाट डू यू फील कि मतलब what should be the motivation, what was your motivation and what should be the motivation for the candidates who are aspiring for civil services? मतलब देखिए, there are two types of audience. एक तो हमें in the wake of this COVID pandemic हमें ये अंदाजा हो गया कि how important is to secure such a job जिसके अंदर एक मतलब आपका स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब एक गुड सोर्स ऑफ इनकम एज वेल एज अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम. ये कोविड के अंदर हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया है. एंड नंबर 2, एक वो उस तरह की ऑडियंस है जो मतलब दोज हु आर क्वालिफाइड, दोज हु हैव बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेट कैरियर्स, मतलब जो मतलब अपना फॉरेन एजुकेशन भी है और मतलब मल्टीनेशनल्स में अपना वो, इवन दोज ऑडियंस लाइक फ्यू डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो के even for those, what would you recommend them कि मतलब why can they join civil services of Pakistan, why can they consider joining civil services, what's the motivation? I think Avais, the thing that I think the most important is that, you know,
आप आपके हाथ से किसी के लिए अच्छा अगर आप कर सकते हो तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर समबडी। और वो मैंने जो अपने उसमें एक्सपीरियंस किया, आई एम श्योर देयर आर अदर करियर्स एज वेल जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हो, बट जितना ज्यादा आप लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो, लोगों की लाइफ्स को, ना सिर्फ एक बंदे की लाइफ को बल्कि पूरे पूरे खानदानों की लाइफ को। फॉर That's एग्जाम्पल, great. That's great. मैं आपको अपना बता देती हूँ कि इफ आई एम डिसाइडिंग अ केस कि कौन मुल्जिम है कौन मुल्जिम नहीं है, जिस तरह का हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान में, अगर मेरे डिसीजन जो है पूरे पूरे खानदानों को इम्पैक्ट करेंगे बिकॉज उन्होंने फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोर्ट्स कचहरीज के थ्रू जाना होगा, तो उसमें अगर एक अच्छा डिसीजन होता है तो एक पूरा खानदान बच जाता है, और एक अगर गलत डिसीजन हो जाता है तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। सो इट इम्पैक्ट जो है वो आपका बहुत मैसिव लेवल पे जो है वो आप इम्पैक्ट कर सकते हो चीज़ों को। और स्पेशली अगर आप डीएमजी में जाते हो, इनकम टैक्स में चले जाते हो, सीनियर पोजीशंस में आप पॉलिसीज बना रहे होते हो पूरे पूरे पाकिस्तान के लिए, जिससे आपका एक आम आदमी जो है उस पर क्या टैक्स लगना है, क्या पेट्रोल का रेट होना है, किस तरह से वो हॉस्पिटल्स पे खर्चा होना है, फाइनेंस में अगर आप चर्चा, तो इम्पैक्ट इज ह्यूज। एक तो वन ऑफ द रीजंस इज दिस। सेकेंडली, अब मैं ये समझती हूँ कि सिविल सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस ज्यादा होने के साथ साथ लोगों को अब उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होना शुरू हो गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जो हम बार बार कहते हैं कि मुल्क के हालात नहीं चेंज हो रहे, मुल्क ऐसा है, 70 साल हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें जब हम देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, तो वो एवरीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू दैट टू मेक पाकिस्तान बेटर फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। और तीसरा, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैं लड़कियों के तवज्जुद से बात करूंगी कि मुझे ऐसा लगता था कि वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, यू नो, फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो, हर तरह से एम्पावर्ड हो, और एक ऐसा करियर हो जो रिस्पेक्टेबल करियर हो, जिसमें औरतों से सवाल ना किया जाए कि भाई ये किस तरह की जॉब है, ये क्या हो रहा है। तो सिविल सर्विस एक ऐसा करियर मुझे लगा, जिस मेरी कन्वेंशनल फैमिली थी कि जिनको मैं कन्विंस कर सकूंगी कि भाई ये एक ऐसा करियर है जिसमें अगर मैं जाऊंगी तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। सिविल सर्विस की बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है। हालांकि मेरा एक जो ऑप्शन ऑफ पुलिस है ये बड़ा अनकन्वेंशनल है, औरतें नहीं होती पुलिस में, लेकिन स्टिल मेरे लिए कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को बहुत आसान था। तो आज मैं समझती हूँ कि सिविल सर्विस कितना अच्छा करियर है कि मुझे घर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर तरह के मसले से जो है अगर मुझे अल्लाह ना करे कभी पेश आए तो मेरा करियर जो है वो मुझे टोटली सपोर्ट कर रहा होगा। Thank you so much, Amna. I think you're inspiration for a lot of girls, और obviously जिस तरह आपने कहा कि why police service of Pakistan, और definitely a lot of girls find inspiration in you. So thank you so much. आपके साइड गाइडेंस से मतलब बहुत सारी फीमेल्स मोटिवेट होंगी. So that's great. I again once again congratulate you and wish you कि अल्लाह आपके हक में बेहतरी करे whatever you have achieved so far. अच्छा Amna, please share some of the reasons for failure. What do you personally think, in your teaching experience, what are some of the reasons for successes and failures, by and large, overall, general? That in the light of those reasons for failure, we should tell them what features we have introduced for them, that they should make their way into civil services exam. अच्छा जी, एक तो हमें सबसे बड़ा फेलियर जो है, रीजन फॉर फेलियर है ना, वो कंसिस्टेंसी है। सो फॉर एग्जाम्पल, लोग कंसिस्टेंटली ना तो बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ना तो बैठ के क्लासेस कर रहे होते हैं। एंड जैसे आपने मेंशन किया कि हर चीज की पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है, तो आई थिंक कि जो सबसे बड़ा पॉजिटिव वी कैन टेक आउट फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्लासेस और पेंडेमिक में जो ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, उससे ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है, फॉर द वेरी फैक्ट कि अब आपको, जैसे लोग कहते हैं कि हाँ शायद एकेडमी दूर थी, आना नहीं था, आज ट्रैफिक थी, आज घर से नहीं जा सके, आज ये मसला था, व्हाटएवर। तो जो घर की लर्निंग है, जो ऑनलाइन लर्निंग है, उसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि आपको बहुत आसान है, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से लोगों का फेलियर है ना, कि क्लासेस मिस हो गई, असाइनमेंट्स नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो ऑनलाइन लर्निंग से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज अब वो जो एक मसले हैं वो कम हो के आपने सिर्फ कंप्यूटर का स्क्रीन खोलना है एंड यू हैव टू सिट। तो घरों में आप बैठे हुए हो, जैसा आपने कहा कि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग दे नॉट वर्किंग और वर्किंग फ्रॉम होम या घरों में मैसूर हैं, तो उनके लिए टाइम भी एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो वो इसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं बाय जस्ट इंश्योरिंग कि वो क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड आई बिलीव कि एक तो ये कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर है, दूसरा मैं अगेन आई विल रिपीट कि आप लोगों की गाइडेंस ना ठीक होना एक बहुत बड़ी वजह है सिविल जो है फेल होना। बहुत सारे लोग अपने टीचर्स की बात सुन नहीं रहे होते, सीरियसली नहीं ले रहे होते, अपने टीचर्स को अपने असाइनमेंट्स नहीं दे रहे होते चेक करने के लिए। सो उसमें अगेन आई वुड फोकस ऑन गाइडेंस कि प्लीज गेट द राइट गाइडेंस। अपने टीचर्स एक एक हर सब्जेक्ट में ये ना समझे कि भाई इस सब्जेक्ट की यूएस हिस्ट्री की इन्होंने एक जैसे वो पाक अफेयर्स में
कह देते हैं ट्रैक टू पाकिस्तान इज द बुक, वो पढ़ लें तो बस आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आजकल सिलेबस जो है वो बहुत वाइड हो चुका है। आपको टीचर बताएगा कि भाई ये टॉपिक आपने एग्जैक्ट कहाँ से पढ़ना है, इस टॉपिक का लेक्चर कहाँ से करना है। तो उसके लिए अगेन कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क आर द टू वेरी थिंग्स विच मेक और ब्रेक द डील। Exactly. Thank you so much, Amna, for the remarkable answer. बल्कि आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स। एक जमाने में एग्जाम्स बड़े सिंपल हुआ करते थे, इफ यू रिमेंबर, एक जमाने में मतलब ग्लोबल वार्मिंग, डेमोक्रेसी। लेकिन आज किस तरह के मतलब एसेज आ रहे हैं टुडे? essays are analytical in nature. You first of all need in-depth understanding of the topic. Then you need your ability to properly understand, then frame your own opinion, then comment, then analyze, and then appropriately write down in that given amount of time. मतलब बहुत कम था, and this is only possible when you first of all take the lectures, जो मतलब regular lectures आपको provide किए जाएंगे, then you come and discuss with colleagues as well, और मतलब अगर आप नहीं हो तो घर में भी मतलब आपको vlogs और वो सारी चीजें मतलब provide की जा रही हैं। you are to be provided the material as well, मतलब reading material, best possible vlogs, videos, best possible research articles, best possible publications, वो सब बनाकर then you are given the chance to attempt the question, take the question from past papers, write down as much as attempt as much questions as possible, and then सबमिट द असाइनमेंट्स, और टाइम के अंदर आपको एंड टेक द फीडबैक, अप्रोप्रिएट फीडबैक उनको मिलता रहता है। दिस इज द एबिलिटी दैट दे नीड टू इंस्टिल विद इन देमसेल्व्स। और वो माशाल्लाह जो जिसने इस पे अमल किया, आप वही आप अलीबा वही क्वालिफाई करते हैं, रादर देन नॉलेज एंड रादर देन स्टडिंग ब्लाइंडली, यू दे जस्ट नीड टू फॉलो द डायरेक्शंस। ठीक है, अच्छा आमना, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वन थिंग एज आई इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टार्ट, कि जब भी इस तरह की कैलेमिटी होती है, एजुकेशन बिकम्स द फर्स्ट विक्टिम, और खास तौर पे फीमेल एजुकेशन है। तो आपने अभी हाईलाइट किया है कि मतलब ऑनलाइन सिस्टम का क्या फायदा है, तो खास तौर पर LMS फीचर जो हमने इंट्रोड्यूस, जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, एंड दैट्स इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन टू से कि इट इज द बेस्ट ऑल्टरनेट टू द फेस टू फेस लर्निंग। कि मतलब अगर बाय चांस ड्यू टू दिस पेंडेमिक, जो कि दुनिया में कोई भी कैलेमिटी आ सकती है, हमारा फेस टू फेस लर्निंग एक्सपीरियंस डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन वी हैव प्रोवाइड, काइंडली टॉक अबाउट दैट स्लाइटली, ताकि इन्हें पता चले कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ये कोई अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस का टाइम नहीं आया है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एंजाइटीज प्रिवेलिंग अमंग द कैंडिडेट्स, दे वर थिंकिंग कि मतलब बहुत ही मुश्किल वक्त आ गया है, एज इफ द वर्ल्ड हैज नेवर सीन बिफोर, और दुनिया में शायद इस तरह के टाइम्स नहीं आए कभी भी, और हम ही बदकिस्मत हैं, हम लोगों पे ऐसा टाइम आ गया है, और व्हाट शुड वी डू? और या तो सर पे सवार करके ये बैठे रहे इन सारे प्रॉब्लम्स को, या मतलब दे ट्राई टू अडेप्ट देमसेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस एंड look for the alternatives, because I personally believe adaptability is the biggest trait any individual has. So how can they avail this time? कहते हैं ना हर क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, so what's opportunity for them in this crisis, and how can they avail this time and prepare for using this online platform that Skips has provided them? जी अवैस बिल्कुल, मैं तो आपसे एग्री करूंगी, बिकॉज जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस था, मेरा तो इन पर्सन था ना, और देयर वर टाइम्स जब मेरे से क्लास मिस हो जाती थी, कभी ड्राइवर नहीं था, कभी गाड़ी नहीं थी, कभी नहीं जा सके, कोई और मसला हो गया घर पे, कोई और मसला हो गया। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगेन जैसे आपने कहा कि मेक द मोस्ट ऑफ इट। अभी जैसे बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि बोर हो रहे हैं घर में, कुछ करने को नहीं है, लॉकडाउन हो गया है फिर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उस सारे टाइम को आप बहुत अच्छी तरह से अवेल कर सकते हो, और अपने LMS सिस्टम में जो आपने कहा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो तो इतनी अच्छी बात है कि आपका जब स्केड्यूल, जो आपका स्केड्यूल है, आप उसको अपने स्केड्यूल के हिसाब से जो है वो फिट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम भागते थे एकेडमी के, भाग रहे हैं जी, जल्दी से क्लास लेनी है, या आधा पहला हिस्सा स्किप हो गया, पता नहीं टीचर ने क्या पढ़ाया था। तो LMS में एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से अपने लेक्चर्स को जो है वो ले सकते हो, चाहे वो रात के आप 2 बजे ले लो, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, चाहे वो आप सुबह ले लो, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कि जिनके टाइमिंग्स ऐसे हैं, जो कि घरों में शायद 4 बजे तक काम करते हैं या 9 बजे तक रात को काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है कि व्हेनेवर दे गेट टाइम दे कैन जस्ट लुक एट वन लेक्चर, और उनकी जो है वो प्रिपरेशन हो जाती है। इसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, शायद वो आप लोगों के लिए, बड़ी सिटीज के लिए ना हो, बट बिकॉज एज यू सेड के दीज लेक्चर्स आर फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान में हर जगह में जो है ये आप लोगों का सिस्टम जो है, लोग पीपल कैन एनरोल फॉर इट। तो वैसे मैं आपको बताती चलूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान में जहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं होता, लाइट का इशू होता है, तो वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि व्हेनेवर दे आर फेसिंग एनी एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल इस तरह का जिसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो इन लेक्चर्स को व्हेनेवर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, वो इनको यूज करके पढ़ सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई सिस्टम हो सकता है। इट्स इवन बेटर देन 1-to-1 सेशंस इन सच सर्कमस्टांसेस। एंड फाइनली एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूं, तो मुझे अंदाजा है कि वहां पे स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी। देयर आर सर्टन कैफेज एंड सर्टन एरियाज जहाँ पे वो एक सर्टन टाइम में इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स जो इतना चल चल के इतना दूर घरों से जाके इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एलएमएस सिस्टम का बहुत ज्यादा फायदा होगा, because they would be able to get or listen to the lectures whenever it's feasible for them instead of for feasible for the academy. Exactly. Thank you so much, Amna. एक क्वेश्चन है एक फीमेल की तरफ से कि is it possible कि even after getting married and doing a job, a girl is married as well as doing the job, can she prepare for CSS, and is it possible for her to do? Kindly clarify that because you will be the best person to clarify that answer. एब्सोल्युटली। वैसे इसमें मैं दो बातें करूंगी। इसमें मैं एक तो ये मैरिज के साथ और बच्चों के साथ वाली बात भी करूंगी, और इसके साथ इफ यू अलाउ मी आई वुड आल्सो बी टॉकिंग अबाउट Sure, हाउ sure. इट्स वेरी पॉसिबल टू टेक द एग्जाम और क्लियर द एग्जाम व्हाइल यू आर वर्किंग। एक ये सवाल भी बहुत होता है कि हम जॉब कर रहे हैं, क्या जॉब के साथ पास कर सकते हैं? तो मैक्सिमम पीपल क्लियर सीएसएस विद अ जॉब और विद, कुछ लोग कहते हैं हम मास्टर्स डिग्री में इनरोल्ड हैं तो क्या हम पास कर सकते हैं? तो सब लोग पास कर सकते हैं, इवन वो खवातीन। मेरे साथ मेरे बैच में ऐसी लड़कियां भी थी जिनके दो दो बच्चे थे and they had cleared. Great. That's great. अगले साल भी बहुत सा, हम हर साल में हर बैच में हमारे साथ खवातीन ऐसी होती हैं जिनके बच्चे होते हैं और उन्होंने एग्जाम क्लियर किया होता है, और वो बच्चे उनके साथ सिविल सर्विस एकेडमी में भी आते हैं फिर, और वहां पे उनके लिए डे केयर्स होते हैं प्रॉपर। सो इट्स वेरी पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप शादी कर चुके हो, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, हर तरह का बंदा जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठ सकता है और उसको पास कर सकता है, बिकॉज वी हैव एग्जाम्पल्स सो मेनी ऑफ देम फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एरियाज। All right, that's great. And salute to those ladies जो इतनी struggle करती हैं, and these are inspiration for everyone. So everyone can do, everything is possible. अच्छा, इनफैक्ट मुझे एक बात याद आई है कि as you know, unfortunately we are passing through a very difficult time, और सब ये समझ रहे थे कि as if these times are unprecedented. So students need to be reminded कि this is not for the first time कि world is witnessing such an outbreak of a disease या such calamities. I just give you an example 20th century की सब students से मैं मुखातिब हूँ। 20th century का मतलब 1900 से लेकर 2000 तक the world witnessed catastrophic events. अब पॉइंट ये है कि just to relax you people कि you should not sit idle और इस तरह की मुसीबत को अपने ऊपर सवार करके बैठ जाओ. You should adapt yourself in any circumstances. Circumstances तो inevitable है. They will be coming obviously. You will see one thing कि the world was always living side by side with such circumstances and such issues. जो 20th century की history है. You know one thing, आमना 1914 में there was World War I, millions of death. वो सबसाइड क्या हुई कि 1918 में there was outbreak of Spanish flu which wiped out which killed nearly 50 million people. उस वक्त तो statistics नहीं थे, I don't know how many people were killed. Then 1939 में there was World War II, you know one thing. And then the period from 1945 to 1990, that was a Cold War, the ideological clash between the US-led capitalist bloc and a Soviet Union-led communist bloc. मतलब imagine the prevailing tensions across the globe. उस दौरान there were many other outbreak of diseases as well, malaria, cholera, plague, and many other things, which decimated nearly millions of people. Point ये कि आज का जो ये crisis चल रहा है, this is nothing as compared to what the world has already witnessed before. लेकिन the ability that differentiates one person from the other person is your ability to remain positive in every situation. ये mind है ना, I personally believe it's like a magnet. ये law of attraction, ये जो मतलब आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है. अगर आप घबराओगे, आप प्रॉब्लम्स को सर के ऊपर सवार कर दोगे, जिस चीज से आप डरोगे वही चीज हो जाती है. मतलब आपका इफ यू थिंक नेगेटिव, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल, आपका इंटरेक्शन टुवर्ड्स पीपल, आपका लेवल ऑफ एफर्ट, आपका मतलब जो आपका लेवल ऑफ एफर्ट है वो वही होगा कि वही चीज होगी जो आप सोचोगे जैसा. बट इफ यू थिंक पॉजिटिव डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग गोना बी पॉजिटिव. बिलीव मी, ये मैंने एक चीज सीखी थी. सो आज पॉइंट ये था कि यू शुड बी पॉजिटिव एंड यू शुड बी, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. कि डिस्पाइट ऑल दीज सर्कमस्टांसेस जिससे आज हम गुजर रहे हैं, दीज आर नथिंग एज कंपेयर्ड टू क्या उस वक्त 20th सेंचुरी में लोगों ने अपने कैरियर्स छोड़ दिए थे? नो, ऑब्वियसली द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी सीइंग द प्रॉब्लम्स एंड वी वर लिविंग साइड बाय साइड विद दीज प्रॉब्लम्स. सीधी सी बात है. बट यू हैव टू अडेप्ट टू ऑल सर्कमस्टांसेस. अच्छा, अब आपका ये जो करंट सेशन है डियर ऑल, this is online session right now, ठीक है? And after 2 days there is an announcement as well कि after 2 days you're gonna be allowed for 1 or 2 days free trial classes. You can join them, ठीक है? तो आपके पहले 2 months होंगे कंपल्सरीज, जिसके अंदर आपको रेगुलर लेक्चर्स एज वेल एज देयर इज अनदर फीचर कॉल्ड सुपर लेक्चर्स. मतलब आपको ऑन एवरेज इफ आई कैलकुलेट टोटल पूरे साल तक 4 months के अंदर आपको हमने क्लासेस अपनी कंप्लीट करवानी है. लेकिन 4 months का मतलब ये नहीं है कि हमारा साथ 4 month रहेगा. हमारा साथ एंड तक टिल February, टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम एंड इवन द नेक्स्ट ईयर एज वेल.
मतलब throughout the next year you can come and easily seek help from the academic counselors available. Once you join this institute you will always be the part of KIPS family. ठीक है, तो फर्स्ट 2 मंथ्स हमने आप लोगों को कंपल्सरीज कवर करवाने हैं, एंड दैट विल बी ऑनलाइन सेशन, दैट विल बी लाइव क्लासेस, मतलब ऑनलाइन जो जिस तरह होगा. एंड आफ्टर दैट हम अगर तो ये क्या कहते हैं पेंडेमिक सबसाइड हो गया एंड अगर हमें फिजिकल क्लासेस की इजाजत मिल गई, then we're going to be covering the optionals from physically in the live in the campuses. लेकिन otherwise we're going to be switching to this online learning experience. ठीक है, first 2 months में हमने आपको compulsories cover करवाने and then about your optionals. अच्छा आमना, there is a common concern about optionals, so kindly talk about 4 to 5 minutes on what should be the criteria to select their optionals, and what also tell them some basics about CSS के कितने subjects होते हैं और options का combo क्या होता है, if you're aware of this जो 7 आपके groups हैं जो recently अभी बने हैं 2016 के बाद जब syllabus overhaul हुआ था. I'm talking about that thing. Please help them in selecting their optionals. उसके बाद individually किसी को guidance चाहिए, they can approach the academy, they can approach any of the academic counselors, उनको help कर दी जाएगी accordingly. Plus please give them a general guidance on how should they select their optionals. अच्छा वैसे इसमें जी बहुत अच्छी बात आपने की, इम्पोर्टेंट है बहुत सारे लोगों को. जैसे मैंने आपको कहा मुझे खुद भी नहीं पता था जब मैंने सिविल सर्विसेज के पहली दफ़ा मैं एकेडमी गई, सो आई हैड नो आइडिया कि क्या होते हैं सब्जेक्ट. सो देयर आर 12 सब्जेक्ट्स इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिस 12 में 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 आपके जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं. जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 2 इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल योर एसे एंड योर कॉम्पोजिशन एग्जाम, विच आर 2 सेपरेट एग्जाम्स 100 मार्क्स के होते हैं. और जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको 100 में से 40 मिनिमम स्कोर करना होता है टू क्लियर. सो आपका इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश कॉम्पोजिशन होता है, जनरल साइंस होती है, करंट अफेयर्स होता है, पाक अफेयर्स होता है और इस्लामियात होता है. सो इस्लामियात, इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश कॉम्पोजिशन आर दोज 3 एग्जाम्स इन योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो कि बहुत जरूरी हैं पास करने, बिकॉज जो जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स का एग्जाम है उनका ग्रेड मिल के बनता है. तो उसमें अगर आप में कुछ कम मार्क्स भी आ गए तो कोई बात नहीं, वो 300 में से होता है तो इवेंचुअली यू क्लियर. बट जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी वो आपका ऐसे होगा, कॉम्पोजिशन होगा और आपकी इस्लामियात होगी. बहुत सारे लोग इस्लामियात को लाइट लेते हैं, इस्लामियात को लाइट मत लेगा. बहुत सारे लोग सब कुछ पास कर जाते हैं, इस्लामियात में वो फेल हो जाते हैं. सो प्लीज इस्लामियात को मत समझिए कि ये मैट्रिक एफएससी वाली इस्लामियात है और पास हो जाएगी. इस्लामियात का सिलेबस बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन स्टडीइंग. सो अपने इस्लामियात की क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिएगा और इस्लामियात की क्लासेस में कोशिश कीजिएगा अपनी असाइनमेंट ज्यादा से ज्यादा देके उस पर फीडबैक लें. सेम गोज फॉर एसे एंड कॉम्पोजिशन. एसे, कॉम्पोजिशन और इस्लामियात को बिल्कुल लाइट नहीं लेना, क्योंकि इसमें कहना तो बहुत आसान है कि 40 स्कोर आ जाएगा 100 में से, बट नहीं आता और बहुत मुश्किल होता है वो 40 स्कोर करना. तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने ऑप्शनल्स के बारे में. जी, सो ऑप्शनल्स जो हैं वो आपके अब 7 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में से आप एक ऑप्शनल ले सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ जो क्राइटेरियाज आपके जहन में होने चाहिए जब आप अपने ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हो. सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके ऑप्शनल सेलेक्ट करने में ये होना चाहिए कि क्या उस सब्जेक्ट की गाइडेंस अवेलेबल है जो मैं ऑप्ट कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो है वो मर्केंटाइल लॉ ले लेते हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि ना कोई अकेडमी उसको पढ़ा रही होती है ना कोई टीचर अवेलेबल होता है. तो इस तरह का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लेना जिसकी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है. योर फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी कि व्हाटएवर सब्जेक्ट यू सिलेक्ट देयर शुड बी गाइडेंस अवेलेबल फॉर इट, सो दैट यू नो कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या उसका फीडबैक कहाँ से लेना है, किस टीचर को दिखाने हैं. ठीक हो गया. सो गाइडेंस के लिए जरूरी है कि आपके सब्जेक्ट की गाइडेंस और उसके लिए नोट्स और मटीरियल अवेलेबल हो जिससे आपने पढ़ना है. पहली बात तो ये. दूसरी इंपॉर्टेंट बात सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत जरूरी ये है कि आपने देखनी क्वांटिटी ऑफ सिलेबस क्या है. बहुत सारे आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो पहले 200 मार्क्स के होते थे और आप 100 मार्क्स के हो गए और उसका बहुत ज्यादा सिलेबस है. तो अगर आपने ऑलरेडी कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया हुआ है विच इज वेरी हैवी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो डू नॉट गो फॉर अ सब्जेक्ट विच इज अगेन क्वांटिटी में वो बहुत ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल इसमें इंडो पाक हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री की मैं आपको एग्जांपल दूंगी. ब्रिटिश हिस्ट्री मेरे साल में 200 मार्क्स का होता था बिकॉज इट इज अ ह्यूज सिलेबस, और अब वो 100 मार्क्स का हो चुका है. तो उस ग्रुप में से अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो कोई सब्जेक्ट तो यूएस हिस्ट्री इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज उसका सिलेबस जो है वो कम है कंपैरेटिवली. सो जरूर देखिएगा कि आपने क्वांटिटी हैवी सिलेबस सब्जेक्ट्स नहीं उठाने, कि हर सब्जेक्ट जो है आपने ऐसा उठा लिया जिसका इतना ज्यादा सिलेबस है जो कि शायद आप टाइमली कवर ना कर सको. सो यू हैव टू मेंटेन
maintain a balance between subjects which are very heavy in syllabus और subjects which are light, और इनका एक balance आपने create करना होता है जब आप अपने subjects ले रहे होते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात सब्जेक्ट ऑप्शनल के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में वो ये है कि आपने देखना है कि सब्जेक्ट्स में ओवरलैप हो रहा हो, एक सब्जेक्ट आपको दूसरी चीज में हेल्प कर रहा हो। सो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपने लिया है तो उसके साथ अगर आप इंटरनेशनल लॉ ले लेते हो सो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत मेजरली हेल्प कर लेते हैं। इसी तरह से जेंडर स्टडीज भी, आपको यूएस हिस्ट्री ले लो, जेंडर स्टडीज का बहुत बड़ा फेमिनिज्म वाला पार्ट जो है वो यूएस हिस्ट्री से कवर हो जाता है। सोशियोलॉजी ले लो, सोशियोलॉजी ओवरलैप्स विद जेंडर स्टडीज। सो इस तरह से आपने देखना है कि आपने बैलेंस सा क्रिएट करना है कि एक तो आपके सब्जेक्ट्स ओवरलैप हो रहे हो ताकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में उसकी हेल्प हो रही हो, इसी तरह से सिलेबस जो है वो आपका इस तरह सा इतना हो कि आप मैनेज कर सको उसको, एंड फाइनली उसकी गाइडेंस जो है वो आपके पास अवेलेबल हो। तो ये 3-4 चीजें आपने जहन में रखनी है। उसके बाद अब लेना कैसे है, लेना ऐसे है कि जनरली लोगों ने जहन बना लिया होता है। अच्छा, बाय द वे बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड था तो अब मैंने इकोनॉमिक्स ही लेना है। भाई अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है तो आपने तब लेना है, अगर इकोनॉमिक्स नहीं आती तो तब आपने नहीं लेना। मेरा अपना इकोनॉमिक्स था, मुझे पता था मुझे नहीं आती, तो इंस्टेड आई वेंट फॉर समथिंग एल्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड रियली वेल। तो आपने अब खुद अपने आप से पूछना है कि क्या मुझे मेरे बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट आता है या नहीं आता। जैसे लोगों की अकाउंट्स एंड फाइनेंस होती है, और अगर अकाउंट्स एंड फाइनेंस आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, डू टेक इट, आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। बट अगर नहीं आती एंड यू बेयरली पास्ड इन योर यूनिवर्सिटी, देन देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन जस्ट फॉर द सेक के मेरा इसमें बैकग्राउंड है। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन होती कैसे है, आप एक कॉम्बिनेशन सा जहन में बना लेते हो कि आईआर ले ली, इंटरनेशनल लॉ ले लिया, जेंडर ले ली, सोशियो ले ली, बट एक दो सब्जेक्ट्स में अब आपको फाइनलाइज नहीं हो रहा होता आपका कॉम्बिनेशन। करना क्या है, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले हमेशा हर तरह के सब्जेक्ट को लेने से पहले एक दफा पास्ट सिलेबस देखना है। सिलेबस देखना है जो कि एफपीएससी की वेबसाइट में है, ताकि आप फेमिलियराइज हो जाएं कि इस सब्जेक्ट में क्या है, आईआर में कैसी चीजें मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। इसी तरह से सब्जेक्ट का सिलेबस देखने के बाद आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं। पास्ट पेपर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस पे किस तरह के सवाल आते हैं, क्या चीज पूछी जाएगी, 20 मार्क का क्वेश्चन होगा, मैंने उसको अटेम्प्ट करना है। एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको उस सब्जेक्ट की क्लास लेनी चाहिए, ताकि आप क्लास लेके बता सको कि अच्छा ठीक है ये मेरे टेम्परामेंट का सब्जेक्ट है या नहीं। तो ये 3-4 चीजें आपने करनी है इन सब्जेक्ट सिलेक्शन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज द टेकिंग ऑफ द क्लास, क्योंकि जब तक आप क्लास नहीं लेते आपको नहीं पता होता कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और क्या चीज होगी। Exactly. Thank you so much, Amna. Most of the questions we have already addressed, जो मतलब यहाँ पर पूछे गए हैं. Someone is asking about one of the most important concerns between comparison between IR and political science, and also talk about something about agriculture and forestry about this subject if you have. And number 2, someone requested slightly talk about PMS as well. One of the Yeah. ओके अवैस, जो सबसे अच्छा सवाल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपटीशन इज बिटवीन आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस टू बी ऑनेस्ट, और मैं आपको ये कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लाइंडली आंखें बंद करके बस आईआर ले लें या पॉलिटिकल साइंस ले लें, बिकॉज किसी ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस आसान है या किसी ने कहा था कि आईआर में नंबर इस साल बहुत अच्छे आए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये जहन में रखिएगा कि ये डिसीजन आपका अपना होगा। हर इंसान को अल्लाह ने एक डिफरेंट जहन दिया है, एक डिफरेंट तरीका दिया है पढ़ने का, तो हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन में ये नहीं कह सकती कि आईआर बेहतर है और पॉलिटिकल साइंस फजूल है, या पॉलिटिकल साइंस बेहतर है और आईआर मुश्किल है। I would again emphasize that it totally depends कि आपकी अपनी क्या आपको क्या चीज बेहतर समझ आती है। कुछ लोग आईआर में बहुत अच्छा एक्सेल कर जाते हैं और कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस में बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसमें यही तरीका है, मैं आपको बार बार ये कहूंगी कि सब ये बहुत जो आईआर और पॉलिटिकल साइंस का डिसीजन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बिकॉज ये 200 मार्क्स का डिसीजन है। सो 200 मार्क्स के डिसीजन में आई वुड अगेन एम्फेसाइज कि दोनों की क्लासेस पहले अटेंड करें, एक एक दो दो, एंड देन डिसाइड कि आपने आईआर की तरफ जाना है या पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाना है। सो अटेंडिंग क्लासेस इज द की, दोनों की एक एक दो दो क्लासेस अटेंड करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या लेना है। exactly. And then, Or and they sorry, are. you Gigi, talked please about carry on. forestry and agriculture as well. So forestry and agriculture is an excellent subject. It is very scoring, अच्छा subject है, but remember that forestry and agriculture में बहुत सारा जैसे geography में है, बहुत सारी names हैं, बहुत सारी species हैं जिसको आपने याद करना होगा. So it's a lot of rote learning. So if you're good at it, I think it's an excellent subject.
दैट्स गुड। अच्छा, आपकी बात से वो आई है बात याद कि द बेस्ट आई थिंक कैंडिडेट कैन डिसाइड व्हाइल सिलेक्टिंग इट, किप्स अलाउ करते हैं कि दे कैन सिट इन द क्लासेस, मतलब दे कैन टेक आइदर, अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है और फिजिकल क्लासेस है, ऑन कैंपस क्लासेस है तो वहां पर भी आकर दे जी आर अलाउड टू टेक 1 or 2 क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड आई पर्सनली बिलीव कि कैंडिडेट खुद डिसाइड कर सकते हैं, मतलब उसका जी जो आपने क्राइटेरिया बताया कि मतलब सिलेबस देखकर भी कि मतलब कितना सिलेबस है, स्कोरिंग नेचर उसकी, स्कोरिंग ट्रेंड, ये सारी क्राइटेरियाज देखकर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या वो सब्जेक्ट उसको मतलब अट्रैक्ट करता है या नहीं, दे विल बी अलाउड टू टेक 1 or 2 क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स और दे कैन देन डिसाइड अकॉर्डिंगली, एंड the counselors will be helping them to decide their subject। सीधी सी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आमना प्लीज टॉक अबाउट समथिंग अबाउट पीएमएस एज वेल, स्लाइटली। Yeah, PMS again, a very good question. I feel that PMS is as vibrant and as good a career as civil services exam or civil service का जो exam होता है, as you can see, it majorly overlaps with the PMS exam. तो अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हो तो उसी से आप PMS का exam भी दे सकते हो, एक दो subjects को अगर आपने ऊंच नीच होती है, बाकी it's exactly the same PMS all over पाकिस्तान। मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करी, मैं गिलगित बल्तिस्तान में भी जो एग्जाम होता है, मैं केपी में भी जो एग्जाम होता है, जो पंजाब में भी होता है, जो सिंध, उन सब का क्राइटेरिया इवेंचुअली इट्स द सेम। So if you prepare for civil services का exam, you can easily sit for not only PMS का exam but also जो posts आती हैं, FIA में assistant director की आ जाती हैं, IB में assistant director की आ जाती हैं, NAB में assistant director की आ जाती हैं। तो जितनी posts और जितने ये आपके गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, you can sit for all of them just by preparing for one civil services का CSS का एग्जाम। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज का जब एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो इसी के साथ मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर जो था वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम आ गया। वो क्योंकि टाइम होता है, बीच में 8-9 महीने होते हैं, तो मैंने उसी तैयारी के साथ जो कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की हुई थी, उसी के साथ मैं IB के एग्जाम में बैठी एंड आई टॉप ऑल ओवर पाकिस्तान। और वो बिल्कुल वही तैयारी थी, उसी तरह से एसएस थे, उसी तरह से MCQs थे। तो ये एक बहुत अच्छा है कि अगर आप एक ही दफा एक अच्छा सेशन ले लें, उसी से आप बहुत सारे और एग्जाम्स भी दे सकते हैं। This is exactly what we guide them कि मतलब people come with different queries कि PMS भी cover हो रहे हैं और CSS is an umbrella exam, मतलब under this umbrella all other small exams they are covered, मतलब by and large थोड़ा सा specific syllabus है। Amna, I just want to announce you one thing कि regarding all these government exams, चाहे वो PMS का जो GK का पेपर होता है, you know one thing, या assistant director NAB, assistant director FIE, assistant director intelligence bureau, and all other, first time KIPS has launched a book with the name of Mind of General Knowledge. This covers everything by and large, generalized questions जो मतलब हर एग्जाम्स के, like पाकिस्तान अफेयर्स के, क्या कहते हैं, इस्लामिया, इंग्लिश एंड सो ऑन जनरल, और स्पेसिफिक एग्जाम के लिए मतलब उस एक स्पेसिफिक गाइडेंस होती है। जैसे नैब के लिए आपने नैब ऑर्डिनेंस पढ़ना होता है, FIA के लिए आपने FIA एक्ट पढ़ना होता है। तो आपकी बात बिल्कुल ये है कि अंडर द गाइज ऑफ CSS एग्जाम एवरी अदर एग्जाम इज कवर्ड। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा मैंने फरमाया वैसे कि बिल्कुल एक थोड़ी बहुत ऊंच नीच होगी एग्जाम में, आपको गाइड हो जाएगा, अदरवाइज इट्स यू आर सेइंग एब्सोल्युटली द राइट थिंग दैट इट्स एन अम्ब्रेला एग्जाम व्हिच कवर्स एवरीथिंग। All right. Another female asked a question, I'm a married person and I'm the only female in the house and I also have a responsibility, financial responsibility. Dear, we have already addressed the part of this question and if you missed, this video will remain uploaded, तो आप accordingly वहाँ पर देख सकते हो, ठीक हो गया? जी बिल्कुल। वैसे इसमें मैं पॉइंट आउट करूंगी कि जो बहुत सारी औरतें हैं, लड़कियां हैं, जिनके लिए अकेडमी जाना आसान नहीं होता, उनके लिए ट्रांसपोर्ट ढूंढना आसान नहीं होता, उनके लिए घर से निकलना आसान नहीं होता, तो LMS एंड ऑनलाइन एग्जाम इज एक्सीलेंट फॉर देम कि वो घर बैठे वो सारी चीजें कर सकती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। कुछ मतलब कैरियर ओरिएंटेड फीमेल है बट बाय मिसलेनियस सोसाइटल हर्डल या लॉजिस्टिक्स हर्डल, इधर आना, हॉस्टल अरेंज करना, फाइनेंशियली मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है, एंड यू नो वन थिंग के जब फाइनेंशियल कंडीशन घर की थोड़ी सी मतलब वी ऑल आर, सीधी बात है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मैसेज। हमें पता है कि जब फाइनेंशियली थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो फिर भी फीमेल एजुकेशन खास तौर पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। और सिक्योरिटी कंसर्न स्पेशली मतलब व्हेन वी हियर अबाउट डिफरेंट इंसिडेंसेस, तो वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से डिफरेंट हर्डल्स जो उनको आते हैं, तो दिस ऑनलाइन सिस्टम इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल दोस फीमेल्स एज वेल हु कैन परस्यू देयर कैरियर्स एंड माशाल्लाह दे कैन बिकम योर जूनियर। आई विश देम कि आपके जूनियर बने इन सर्विस एज वेल। अच्छा आमना, बिफोर वी एंड, एनी लास्ट टिप फॉर एस्पायरेंट्स जो मतलब अभी से, मतलब रमजान का महीना भी आने वाला है एंड दे हैव अराउंड 8 to 9 months left for their exam, वो अभी से क्या उनको करना चाहिए, what should they do, और इस क्राइसिस टाइम को भी वो कैसे अवेल करें, what will you suggest them as a last step before we take their further questions और उसके बाद हम एंड करें?
सबसे इम्पोर्टेंट अवैस अगेन मैं कहूंगी कि अगर वो जल्दी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स नथिंग बेटर देन स्टार्टिंग अर्ली। जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना बेहतर है। दूसरा, गाइडेंस, प्लीज प्लीज गाइडेंस के ऊपर फोकस रखें। आप अभी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में, टेक योर टाइम इन सिलेक्टिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, टेक अ वीक और 2 बिफोर डिसाइडिंग फाइनलाइजिंग कि आपके ऑप्शनल्स क्या होंगे। जल्दी मत करें। आप बार बार पूछें, अपने काउंसलर से पूछें, अपने टीचर से पूछें, जो मेंटोर्स आपको एकेडमी वाले जो सेशंस करवा रहे हैं उनसे सीखें। सो एक तो गाइडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा, एंड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, thank you so much. And is there anything else you want to share, Amna? Do you want okay, so are we going to take questions now, or do you just want to end We so have that addressed I'm by going and to large questions जो मतलब already जो उन्होंने पूछे हुए थे वो पीसीएस के अंदर already हम address कर चुके हैं. So anything else अच्छा, we मैं कुछ बोलना चाहूंगी बस। sure. लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू से बिफोर आई लीव इज दैट बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि शायद हम नहीं कर सकते, या मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पास नहीं कर सकूंगा, या मुझे तो अंग्रेजी में लिखना नहीं आता। एक अंग्रेजी के ऊपर जो मिथ बनी हुई है ना कि अंग्रेजी कैसी होनी चाहिए फॉर यू टू क्लियर सीएसएस, इसके बारे में बात करना चाहूंगी। बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस वक्त जो कि शायद अंडर कॉन्फिडेंट हो अबाउट देयर इंग्लिश, कि शायद मैं ना पास कर सकूं, क्योंकि या तो जो बंदा बोल रहा है या बोल रही है वो अंग्रेजी अच्छी बोल रही है, या शायद वो लिखती भी अच्छी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ मिथ। Always remember, it's within the reach of everyone. You just need to have grammatically correct English. You do not need to have an exceptional English. ठीक है? So अगर जब जब तक आपकी ग्रामर ठीक है तब तक आप आसानी से ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। So please do not get out of this situation और thinking कि मैं शायद अंग्रेजी अच्छी नहीं है या अंग्रेजी में मैं वीक हूं तो मैं नहीं पास कर सकूंगा। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अंग्रेजी पे थोड़ा सा काम करके इजीली एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो इंग्लिश को क्राइटेरिया मत बनाइए। यू नीड टू हैव ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, बट दैट्स अबाउट इट। अपनी ग्रामर अगर वीक है तो उसको ठीक कर लें, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इंग्लिश की वजह से एग्जाम में बैठने से मत डरें। थैंक यू सो मच। ये बल्कि वही क्वेश्चन था जो स्टार्ट में मैंने कहा था, व्हाट आर सम ऑफ द मिथ्स व्हिच आर इन योर माइंड। वो सही बात नहीं है, सिर्फ वो सोसाइटल एक प्रेशर है और जो माइंड में मतलब एक परसेप्शन बनी हुई है कि पता नहीं किस लेवल की इंग्लिश रिक्वायर्ड है, पता नहीं किस तरह के तोप किस्म के। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। इफ यू बिलीव, आई बिलीव इन वन थिंग, कि अभी भी डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर पासिंग थ्रू, अभी भी जिसको लग रहा होगा, इफ यू हैव बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू डिजर्व, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू मेक योर माइंड कि यू डिजर्व इट। Number two, you have to make your mind कि इंशाल्लाह you are willing to put up that much effort in order to become a CSP. तो अगर आपने अभी सोचा हुआ है ना कि you will be CSP, believe me, half of the task is done. Rest, And the thing is, all you have to do. बिल्कुल अवैस, मैं आपसे एग्री करूंगी। सॉरी आई एम कटिंग यू हियर। आई जस्ट वांट टू ऐड कि बिल्कुल ये ना समझिए कि सिर्फ वही लोग बच्चे पास करते हैं जिन्होंने ओ लेवल्स किया होता है या जो बाहर से डिग्रीज करके आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मैट्रिक किया था और मैंने एफए किया था, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम इवेंचुअली दिया। तो मैट्रिक एफए वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं या एफएससी वाले हैं, वो बिल्कुल ये ना समझें कि ओ लेवल्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं या बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको कोई बहुत ज्यादा एडेड एडवांटेज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई विल राइटरेट माई पॉइंट। You need to have grammatically basic correct English, and that's about it. Exactly. अच्छा, Amna, someone asked you about your service के मतलब police job. So just for 1 minute you can talk about your service as well कि मतलब what is your first preference और आपको जो मतलब what you desired for कि मतलब what you aspired for कि you will be getting in service. Are you really enjoying, or just comment on that thing as well? Someone asked Yes, me. बिल्कुल आपने मैंने तो एग्जाम देने से पहले ही घर में सबको कह दिया था कि इफ आई क्लियर द एग्जाम आई विल बी गोइंग टू पुलिस सर्विस। एंड इवन आई रिमेंबर कि अभी आई वॉक्ड इनटू द फर्स्ट टाइम आफ्टर क्लियरिंग माय एग्जाम, एंड आई वाज टॉकिंग टू दिस टीचर फॉर इंटरव्यू, एंड ही सेड कि क्या ऑप्शन है, एंड आई वाज लाइक पुलिस। सो ही लुक्ड एट मी एंड ही इज लाइक you should go if you really want to. And alhamdulillah, there is not a single day that I regret my decision. My father was from DMG, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में से थे, जो कि अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप कहा जाता है। तो मैंने उनकी भी जिंदगी और उनका भी काम देखा है। तो उनकी और मेरी बड़ी लड़ाई होती थी। वो कहते थे कि आप डीएमजी में जाओ, और मैं कहती थी नहीं, मैंने पुलिस में ही जाना है। बट अल्लाह हैड बीन वेरी काइंड एंड आई एंडेड अप इन पुलिस। सो इट्स अ वेरी गुड करियर, इट्स वेरी एम्पावरिंग। मुझे किसी किस्म की कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना अपने जूनियर्स से फेस हुई ना सीनियर्स से फेस हुई। विमेन आर मेकिंग अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस डिपार्टमेंट। पुलिस ज्वाइन करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कितनी सारी खवातीन पहले से थी और बहुत सारी आ रही हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इट्स वेरी पॉसिबल फॉर यू टू हैव एन एक्सेप्शनली गुड करियर
as long as you have a supportive partner or a supportive family. तो मैं बिल्कुल definitely recommend करूँगी police as a career for ladies, and I would also recommend it to to all the men who are also going for this. It's there's no match. I might have a bias for my department, but then there is no match. Yeah. All right. Thank you so much, Amna. So let us summarize. First of all, we discussed about motivation. I would like to add one or two things as well. कि मतलब motivation बहुत जरूरी है. उसकी reason है कि you should be first of all clear in your mind कि why क्यों नहीं हो? क्योंकि जब आप motivated होगे, will power, जो inner some, there should be some inner force जो आपको. I just remember one thing कि मतलब this is the only profession which can provide you a combo of all those things which a human being desires in any profession. मतलब it provides you social respect, recognition, honor, prestige, position in the society. It provides you good income and a stable income, जिसकी already हम बात कर चुके हैं. And most important, जिस तरह आपने कहा था, it provides you authority. Normally इस term को हम negative sense में लेते हैं, लेकिन अगर इसको positive term में लिया जाए, तो this is a very positive term कि मतलब आपको authority बड़े level पे आप लोग मतलब कितना बेहतर कर सकते हो. You people can go and rectify the crime setup, जो administration setup को आप लोग सही कर सकते हो. You can go and make sure कि जो आपका crime है वो खत्म हो. तो this is all about, ठीक है. We address the myths as well, we address some basics as well, we address optional subjects as well. लेकिन still by chance अगर किसी का internet connection interrupt हुआ है, this video will remain uploaded for few days. आप लोग देख सकते हो, and you can call any of the academic counselors, you can call admin member if you need any sort of guidance. You can visit physically the campuses as well. ठीक है, campuses open है, आप लोग visit कर सकते हो for any of the queries. ठीक है. अच्छा, I told you people के टाइम मैनेजमेंट की बात भी हम कर चुके हैं, ऑप्शंस के ऊपर भी जनरली है. ठीक है, एक जनरल टॉक था बिकॉज ऑफ गिव लिमिटेड टाइम स्लॉट, लेकिन इंडिविजुअली जिसको जो हेल्प चाहिए, यू आर वेलकम एनी टाइम. आई रिपीट, जो मैं ऑलरेडी एक चीज कह चुका हूं कि 4 मंथ्स का आपका टोटल सेशन होगा, जिसके अंदर 2 मंथ्स आपके पहले कंपलसरी की क्लासेस होंगी और रेस्ट 2 मंथ्स आपकी ऑप्शनल्स की क्लासेस होंगी. लेकिन आप हमारा साथ टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम. 4 मंथ्स का मतलब है कि जो नंबर ऑफ शेड्यूल्ड क्लासेस हैं जो हमने आपको कवर करवानी है वो 4 मंथ्स के लिए होगी. लेकिन यू कैन विजिट एनी ऑफ द कैंपसेस एनी टाइम, यू कैन अवेल ऑल द फैसिलिटीज. जिस तरह आमना ने शुरू में बात की है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन कैच फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इज दैट यू कैन गेट योर असाइनमेंट्स चेक्ड. आप थ्रू आउट द ईयर असाइनमेंट्स करते रहो, टेस्ट्स दो, आकर यहाँ पर एकेडमिक काउंसलर्स को चेक करवाओ. दोज द फैकल्टी इज अ ब्लेंड ऑफ मतलब मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एज वेल, मोस्ट सीनियर यूनिवर्सिटीज जो मतलब जो डीन्स जैसे होते हैं यूनिवर्सिटी के, या मतलब मोस्ट सीनियर टीचर्स टू फ्रेश क्वालिफाइड एज वेल लाइक आमना. मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और कुछ लोग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है लेकिन उन्होंने उसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करके उसमें मतलब अच्छा स्कोर किया और उन्होंने अच्छा ग्रुप लिया. तो आपको हर तरह की फैसिलिटी से फैकल्टी से इंटरेक्शन आपका होगा. सो वी आर अवेलेबल एनी टाइम फॉर योर हेल्प. ठीक है. ऑलराइट आमना, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. अगेन आई ब्लेस यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह आपके हक में बेहतरी करे जो भी मतलब आपने. एंड इन द एंड I wish everyone, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की आसानियां अता फरमाए, अल्लाह करे नेमतों में कभी कमी ना हो, और whatever you desire for, whatever fascinates you, उसी चीज को अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करके पेश करे. This is my prayer for everyone. ठीक है. We can hope and pray that one day this pandemic gonna be subsided and everything gets to normal, inshallah. ठीक है. We will be resuming our activities, लेकिन जब तक नहीं होता, I told you before, adaptability is the biggest trait that any individual have. हम अंडरस्टैंडेबल है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज के जितने लोग हैं, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है या यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, हम लोग इससे अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन हमने नहीं होना. दिस इज द थिंग. मैंने कहा ना, सर्कमस्टांसेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, हमेशा रहेंगे. जो 20th सेंचुरी की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगे. वी आर लिविंग साइड बाय साइड विद दिस प्रॉब्लम्स. लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर रहकर हमने अपना कोई भी चीज को हमने अपने सक्सेस के रास्ते में नहीं आने देना. वी शुड नॉट अलाउ एनीथिंग टू हैम्पर our way of success. सीधी सी बात है. And we should adapt to situations. तो जब तक ये पेंडेमिक का टाइम है, we are providing you that online service. वो लाइव ऑनलाइन एजुकेशन भी होगा, LMS भी होगा, whatever you prefer. और इंशाल्लाह जैसे ही वो खत्म होगा मतलब ये पेंडेमिक, इंशाल्लाह हम वापस फिजिकल क्लासेस रिज्यूम कर लेंगे. लेकिन एक क्वेश्चन बच्चे का कंसर्न था कि अगर फिजिकल क्लासेस रिज्यूम हो जाती हैं और वो फिजिकल क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकता, तो यू विल बी फैसिलिटेटेड. ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आपको फैसिलिटेट किया जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी. फ्रॉम एवरी पॉसिबल व्यू angle we will be helping you out. ठीक है. Thank you so much Amna once again, and any last thing that you want to share before we leave? Good luck and see you on the other side. God bless you Amna. Thank you so much. Nice seminar.